بلتت فورٹ، ہنزا، پاکستان۔ السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ہم نے بارہا گلگت کا سفر کیا ہے اور ہنزا ہماری پسندیدہ جگہوں میں سے ایک ہے۔ ہنزا نہ صرف اپنی مشہور کن وادیوں، عظیم الشان چوٹیوں، جادوئی ندی نالوں، خوبصورت پھولوں اور رسیلے پھلوں کے لیے جانا جاتا ہے، بلکہ یہ اپنے ثقافتی ورثے کے لیے بھی خاصا مشہور ہے۔ کریم آباد میں موجود التت اور بلتت قلعے نہ صرف قدیم ہیں بلکہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ آج ہم مشہور بلتت قلعے کی سیر کریں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے۔ 700 سال پرانا یہ قلعہ 1945 تک میر ہنزا کے زیر استعمال رہا۔ صدیوں پرانے اس قلعے میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور اسے خاصی رد و بدل کا سامنا کرنا پڑا۔ 16ویں صدی میں ہنزا کے ایک شہزادے نے بلتستان کی شہزادی سے شادی کی تو وہ اپنے جہیز میں اس قلعے کی مرمت کے لیے کاریگر بھی ساتھ لے کر آئیں۔ یہ قلعہ لکڑی اور پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس قلعے میں اعلیٰ معیار کی لکڑی استعمال کی گئی ہے جو اپنی مضبوطی اور لچک کی وجہ سے قلعے کو کافی زلزلوں سے بھی محفوظ رکھنے میں کامیاب رہی۔ قلعے کی عمارت کو اب ایک عجائب گھر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جو ہر سال پوری دنیا سے ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ قلعہ کی اونچائی پر واقع ہے جہاں سے کریم آباد کے کچھ خوبصورت دیہاتوں کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں دوسری بار آئے تھے اور ہر بار یہاں کھو جانے کو دل کرتا ہے۔ جب بھی گائیڈ اس تاریخ کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے تخیل میں قدیم تصاویر اور بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ یہاں نمائش پر اس دور کے نوادرات، لباس، تصاویر، گھریلو سامان، اسلحہ، ثقافتی اشیاء اور معلومات کا خزانہ موجود ہے۔ دن کے وقت انگریزی اور اردو زبان میں گائیڈڈ ٹورز سستے داموں دستیاب ہیں۔ ہنزا جانے کا راستہ، گاؤں میں چہل قدمی، اس خطے کی خوبصورت ثقافت، روایات، مہمان نوازی، موسم، موسیقی اور کھانا سبھی نہایت خوشائند اور دل موہ لینے والی ہیں۔ یہاں سے واپس جانے کو ہرگز دل نہیں چاہتا۔ تو آئیے بلتت قلعے کے گائیڈڈ ٹور سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو قلعے کے تمام حصے دکھائیں گے اور ہمارے گائیڈ اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کریں گے۔ فورٹ کی حدود میں آ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ اس وقت رینوویشن کا کام ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم ٹکٹ گھر کے اندر ہیں، یہاں سے ٹکٹ ملتا ہے اور چھوٹی چھوٹی یہاں پہ دیکھیں سووینیرز بھی موجود ہیں۔ This is our entry to royalty. اور دوسرا قلعہ یہاں پہ ہے التت فورٹ۔ ایک بادشاہ کے دو قلعے ہیں۔
हुंजा बेसिकली गिलगित के नज़दीक से लेकर खुंजराब टॉप तक चाइना बॉर्डर तक ये पूरा इलाका हुंजा कहलाता है। और हुंजा की हिस्ट्री जो है तकरीबन 1000 साल कदीम है। 1000 साल पहले से 1974 तक हुंजा खुद मुख्तार रियासत थी। यहाँ पे बादशाहत का निज़ाम था। इस तरह दरिया से अपोजिट साइड जो है नगर वैली वो एक अलहदा रियासत थी। इस तरह गिलगित, चित्राल, स्कर्दो, गज़र, नॉर्दर्न एरियाज़ अभी जो गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है, 8 से ज़्यादा खुद मुख्तार रियासतें हुआ करती थी। हर रियासत में बादशाह अपने डिफेंस के लिए किले तामीर करते थे। इसलिए हुंजा के हुक्मरानों ने पहले आलतित, उसके बाद ये बल्तित फोर्ट अपने डिफेंस के लिए बनवाए थे और साथ में उनका रेजिडेंस भी था। आलतित फोर्ट तकरीबन 1000 साल कदीम है। इससे पुराना है लेकिन वो छोटा है, आपको छत से नज़र आएगा। बल्तित फोर्ट मुकामी लोगों के कहने के मुताबिक किले की उम्र 700 साल बताई जाती है। 1995 में इस किले की लेबॉर्ट्रीज टेस्ट हुई जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं। उसके मुताबिक किले की उम्र 765 साल फिक्स की गई। तो 20-25 साल और भी बढ़ गए, तकरीबन 800 साल किले की उम्र कह सकते हैं। ये 800 साल पूरे किले की उम्र नहीं है। इन 800 सालों में जितने भी बादशाह गुजरे अपने टेस्ट के मुताबिक कमरे ऐड करते गए, तब ये इतना बड़ा किला बन गया। इस किले में सबसे मेन तब्दीली अर्ली 16वीं सेंचुरी में आई, जो कि हुंजा के एक हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान की एक शहजादी से हुई। उस ज़माने में रिवाज था कि किसी शहजादी की शादी होती थी तो घर बनाने के लिए जहेज़ में कारीगर भी भेजा करते थे। बल्तिस्तान की शहजादी के साथ बहुत सारे हुनरमंद लोग आए। उन्होंने जाकर आलतित फोर्ट में भी एडिशंस की। फिर उसके बाद बल्तित फोर्ट में कुछ कमरे जो है ये बल्तिस्तान के लोगों ने ऐड किए हैं। आपको मालूम होगा कि बल्तिस्तान कदीम ज़माने में शहीन तिब्बत का एक हिस्सा हुआ करती थी, जिसे लिटिल तिब्बत भी कहते थे। तो वो तिब्बतन तर्ज तामीर इस किले में भी हुई है। और चाइना में या आगे चाइना तिब्बत में पोताला पैलेस के नाम से एक किला है, उसकी साख्त और इस किले के साथ बिल्कुल आपस में मिलती जुलती है। तो ये तिब्बतन इन्फ्लुएंस यहाँ पर आ गया तो बल्तिस्तान। दिसंबर 1891 में अंग्रेज़ों ने हुंजा नगर पर कब्जा कर लिया। उस ज़माने में हुंजा के हुक्मरान कोई 20 दिन लड़ाई के बाद जब उनको शिकस्त हुई तो वो यहाँ से चाइना की तरफ मफरूर हुए। फिर अंग्रेज़ों ने उनकी जगह उनके छोटे भाई मीर नज़ीम खान को हुंजा का हुक्मरान बनाया, जिन्होंने 1892 से 1938 तक लॉन्ग टाइम हुकूमत की। फिर अपने दौर इक़्तिदार में मीर नज़ीम खान ने 3rd फ्लोर पहले से बना हुआ था, उसको डिसमेंटल करके वहाँ पे मॉडर्न तर्ज के कमरे तामीर करवाए। मसलन दीवारों पे चूने का सफ़ेदी, खिड़कियों में रंगीन शीशे और बालकोनीज वगैरह का इजाफा उसके दौर में हुआ है। तो 3rd फ्लोर हम बाद में ऊपर जाएंगे, वो 1891 का एडिशन। मेरे कहने का मकसद इस किले में इस तरह एडिशन होते होते तब ये इतना बड़ा किला बन गया। 1945 तक ये रेजिडेंस रहा है मीर ऑफ हुंजा का। 1945 में मीर जमाल खान ये किला छोड़ के नीचे मॉडर्न हाउस बना के वहाँ पे शिफ्ट हो गए। आजकल उनके फैमिली वहाँ पे रहते हैं, वो भी आपको छत से नज़र आएगा। फिर 1945 से 1990s तक ये फोर्ट खाली पड़ा रहा। इसकी मुमकिन देखभाल ना होने की वजह से इसकी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रही थी। अगर मज़ीद देखभाल ना करते तो ये खंडरात में चला जाता। लोग अपने मर्ज़ी से अंदर आते जाते गए तो नाम तासुरा दीवारों पर लिख के इसकी हालत और भी ख़राब की थी। हम लोग मॉडर्न ज़िंदगी में इंटर हुए तो अपनी सकाफ़त, अपनी पहचान आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगे थे। इसको दोबारा रेस्टोर करने के लिए हिज हाइनेस आगा खान ने महसूस किया, क्योंकि यह किला रॉयल फैमिली की मलकियत थी। जब उनसे पेशकश की गई तो रॉयल फैमिली ने इस किले को पब्लिक के नाम पे डोनेट किया। ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। फिर इस किले का एक ट्रस्ट बना, बल्तित हेरिटेज ट्रस्ट BHT के नाम से। फिर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, आगा खान कल्चर सर्विसेज पाकिस्तान, उन्होंने इस किले की रेस्टोरेशन करवाई। 1990 से 1996 तक 6 साल लगे। जो पहले था उसको एज इट इज़ दोबारा मजबूत बनाया। फिर 29 सितंबर 1996 में इस किले की ओपनिंग हुई। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक लगारी साहब, हिज हाइनेस आगा खान और कोई 20-22 ममालिक के एम्बेसडर्स आए इसकी ओपनिंग सेरेमनी पे। फिर उसके बाद किला विजिटर्स के लिए ओपन किया गया। हिस्टोरिकल फोर्ट प्लस म्यूजियम। इस किले को ज़िंदा रखने का मकसद ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अपने पास्ट के बारे में पता चले। बाहर से आपकी तरह जो मेहमान आते हैं उनको ये पता चले कि 600-700 साल पहले इन पहाड़ी इलाकों में लोगों की ज़िंदगी कैसे थी, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, उनका रहन सहन क्या था, इंजीनियरिंग किस तरह का था, ये लोगों को पता चला। इस किले के अंदर अभी उस ज़माने के बादशाह के बेडरूम, गेस्ट रूम, किचन, प्रिजन, रिसेप्शन, समर कोर्ट, विंटर कोर्ट, इस तरह कमरे बने हुए।
हर कमरे की अपनी टेस्ट है, उसी टेस्ट के मुताबिक चीज़ें अंदर डिस्प्ले पे हैं। यहाँ पे जो चीज़ें अंदर डिस्प्ले पे हैं ये सारा 800 या 900 साल के नहीं है, एक ही एज के नहीं है, ये मुख्तलिफ अदवार की चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले पे है। और जब किले की रेस्टोरेशन हुई तो लोगों ने ये कंट्रीब्यूशन किले के लिए दिया है म्यूज़ियम में रखने के लिए। तो आपके जहन में हिस्ट्री के मतलब कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ आप फ्रीली पूछ सकते हैं। दरवाजे बहुत छोटे हैं, अपना सर का ख्याल रखें, और जहाँ पे आपको पसंद आता है तो साथ पिक्चर मूवी वगैरह बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे होते थे। अभी यहाँ पे देखें दरवाजे बहुत छोटे हैं, ऊंचाई पे किला है और बड़े बड़े स्टेप्स हैं। 800 साल पहले बादशाह को ये इनको इल्म में ये नहीं था कि बाद में ये म्यूज़ियम बनेगा और मेहमान आके थक जाएंगे। उसने दुश्मन को थकाने के लिए ऊंचाई पे किला बनाया ताकि दुश्मन का ईजी अप्रोच न हो, बड़े बड़े स्टेप्स रखे और छोटे दरवाजे ताकि दुश्मन एक साथ अंदर दाखिल ना हो सके। तो दरवाजे छोटे रखने का एक रीज़न सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफेंस के लिए। ये रिस्पेक्टेड डोर्स भी हैं, अगर बाहर से जो भी बंदा अंदर आए तो उनके सामने झुक कर आए रिस्पेक्ट के साथ। और हुंजा सर्द इलाका है, -10-15 डिग्री से टेम्परेचर पास होता है। सर्दी से बचाव के लिए छत नीचे और दरवाजे छोटे रखते हैं ताकि हवा कम दाखिल हो। तो आम घरों में भी छोटे दरवाजे होते हैं ताकि बिजली का या गैस का कोई प्रॉपर हीटिंग निज़ाम नहीं था, लकड़ी का आग जलाते तो घर को ज़्यादा हीट अप करने के लिए ताकि सर्दियों में कमरा गर्म रहे। तो वो सामान कैसे लेके आते थे अंदर घर का? जी बड़े बड़े वो कबर्ड्स, बड़े बड़े संदूक, उस ज़माने में इस तरह का कोई रिवाज नहीं था। दरवाजे के हिसाब से छोटे छोटे चीज़ें होती थी, वो आसानी से ला सकते थे। ये अंदर ही बिल्ड करवा लेते होंगे, अंदर कबर्ड्स वगैरह अंदर ही बनाते थे। तो दूसरा उस ज़माने में बाहर से कोई सामान इतना हैवी कोई चीज़, क्योंकि वो जहेज़ वाला आजकल जो वो निज़ाम नहीं था। छोटा बॉक्स में 2-3 जोड़े कपड़े देते थे बेटी की शादी में, इस तरह का सिस्टम था। तो ये इस किले का रिसेप्शन रूम, बाहर से जो मेहमान आते हैं उनको रिसीव करने के लिए उनके गार्ड यहाँ पे होते थे। छोटे छोटे विंडोज़ बने हुए हैं यहाँ से बाहर नज़र रखने के लिए। बाकी 15वीं सेंचुरी के बाद बाहर की जो दीवार है वो एडिशन है, वहाँ पे अभी गैलरी बनी है, तो वहाँ से हम वॉक करके आगे कमरे में जाएंगे। इस रिसेप्शन रूम का निचले जो पोर्शन है यहाँ पे ज़्यादातर गले के गोदाम्स हैं, उनमें से एक गोदाम ये है। क्योंकि गर्मियों में हुंजा में एक दफ़ा फसल पकती है, गर्मियों के 6 महीने में जो फसल पकती फिर सर्दियों के लिए स्टोर करते थे। बादशाह की जो अपनी ज़मीन से जो फसल मिलता था वो भी, और लोग टैक्स भी देते थे, मालिया गंदम जौ मकई उसकी शक्ल में, तो वो ला के स्टोर करने के लिए ये गले का गोदाम है। 9 फुट गहरा है, 6 बाई 6 स्क्वायर फीट है। किसी रस्सी सीढ़ी की मदद से छोटे बच्चे को बेचते बर्तन के साथ और उसमें भर के यहाँ से ऊपर निकल, इसका और कोई दरवाजा नहीं। लोगों का बैंक भी था, कोई ज़रूरतमंद आता तो यहाँ से गिफ्ट में देते थे। बंदा उधार लेना चाहे उधार ले जाते थे, नेक्स्ट जो फसल पकती थी सूद के साथ रिटर्न करते थे, या उस समय बाटर सिस्टम था, माल के बदले माल तब्दील करते थे। छुपने की जगह बहुत सारी जगह ये छोटे बच्चों को भेजते थे अंदर पनिशमेंट के तौर पे जब बच्चे शरारते टाइम पीछे औरत गो इनसाइड, और इस तरह छोटे स्किनी पर्सन को नीचे बेचते थे क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं तो बच्चे को ही बेचते थे यहाँ से नीचे, ताकि यहाँ से चोरी भी ना हो। अच्छा, सामने बर्तन गंदम तोलने के लिए है, आधा किलो 5 किलो 10 किलो गंदम तोलने के लिए ये तराजू होते थे। उस ज़माने में लोहे तांबे के देगची नहीं थे, बल्कि इस तरह के एक नरम पत्थर को तराश के इसमें हंडी पकाते थे 800-900 साल पहले। इसमें सालन बनाने के लिए तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं। एक दफ़ा सालन बनाओ तो ठंडा नहीं होता, 8-10 घंटे तक हीट कंटिन्यू रह सकती है बिकॉज ऑफ द स्टोन। और जब ये धीरे धीरे आराम से पकता है तो इसमें सालन बहुत टेस्टी होता है। ये घोड़े का जीन है, ट्रांसपोर्ट के लिए पोलोमेचिस के लिए हॉर्सेस होते थे, द सेडल फॉर हॉर्स। और हुंजा में पहला वेपन ये तीर कमान होता था। अभी तीर का नोक जो है वो लकड़ी को शार्प करके रखते थे। अभी बाद में जब लोहा आ गया तो लोहे लगाते थे। फिर उससे पहले जब लोहा नहीं था, छोटे छोटे बकरियों के सींग लगाते थे पॉइजन के साथ। उस ज़माने में एवरेज एज 100-120 साल तक होता था। जब बंदा 10-15 साल का होता है तो उसके लिए दरवाज़ा छोटा है, और 100 साल रेगुलर इन दरवाज़ों से एक बंदा गुजरता है तो वो बुढ़ापे में जाकर उसका कमर झुक जाता है। ये साइड इफेक्ट ज़रूर है।
लेकिन इतने कद के छोटे लोग नहीं थे। ठीक है। अगले कमरे की तरफ चलते हैं। दरवाजे में अपना सर का ख्याल रखें प्लीज। ये नीचे ये भी गल्ला है। बेटा एक दफा लगना चाहिए ना, पहले याद रखेगा। लगना जरूरी तो Yeah. 800 साल पहले बिजली का निजाम नहीं था, लोहे के ये ग्रिल नहीं होते थे, सादा कमरा था, बिल्कुल अंधेरा। जो कैदी होते यहाँ से रस्सी सीढ़ी के जरिए उतारते थे, जब सजा खत्म तो रस्सी सीढ़ी के जरिए बाहर निकल। यहाँ पे क्रिमिनल्स नहीं होते थे और अभी भी नहीं है, क्राइम रेशियो 0। यहाँ पे सियासी मुखालिफिन होते थे और यहाँ के उन पे दुश्मन को कैद करना। बट दिस वाज नॉट अ रियल फोर्ट, दिस वाज रेजिडेंस ऑफ द किंग, यू कैन से दैट्स द पैलेस। तो पैलेस के अंदर जेल नहीं होता, ये हवालात है 2-3 दिन टेम्परेरी तौर पर रखने के लिए। लंबे अरसे के लिए सजा सुनानी हो तो यहाँ पे फांसी वगैरह नहीं था, यहाँ से उनको एग्जाइल किया जाता था, मुल्क बदर करते थे, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे रहते थे। सामने वो 2 कमरे जो बने हैं बॉडीगार्ड के लिए, ये कनेक्टेड है, ऊपर छत से बाहर भी नजर रखने के लिए और नीचे कदीम कर। अभी भी उस जमाने में 800 साल पहले बिजली के निजाम लोहे की इजली से कुछ भी नहीं था, अंधेरा का एक ही कमरा था। ये रेस्टोरेशन के बाद लगाए हैं ताकि आपको निचला पोर्शन मिल सके। यहाँ पे क्राइम रेशियो 0 हो बताया, तो 0 इसलिए है कि यहाँ पे इस तरह की जेल में किसी कैदी को भूल करो तो बंदा सुधर के निकलता है। अभी आपका कोई रिश्तेदार जेल जाता है तो आप एकदम से उनके लिए टीवी अरेंज करते हैं, अच्छा बिस्तरा देते हो, तो बंदा उधर से बिगड़ के निकलता है। Next room. This is spooky, isn't it? This place. Open this. Ooh. नहीं यार, उसकी बात अलग है। इसी बात लगे फिर हम करते भी नहीं जी बोले। हाँ बना दे। Check this passage. It's quite interesting. I was looking down the whole way. इसकी वीडियो बनाई है? हाँ अभी बना रही हूँ। जिंदान जो उस तरफ वाला था, तो ये गैलरी है, वॉक करने की जगह थी यहाँ पर। ये छोटे छोटे विंडोज बने हैं यहाँ से बाहर नज़र रखने के लिए। और ऊपर जो मैप्स है, इसका किले के साथ ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन ब्रिटिश लाइब्रेरी से फोर्ट के लिए डोनेशन मिले हैं। 700 साल पुराना दुनिया का नक्शा है लातीनी ज़बान में। सेकेंड जो वर्ल्ड मैप है 1550s का है फ्रेंच ज़बान में। पीस ऑफ दुनिया कैसे थी, लोगों का कंसेप्ट क्या था। लास्ट में जो मैप है वो 1887 का इंग्लिश में अबाउट द ग्रेट मॉरिशस और ब्रिटिश के बॉर्डर्स को शो करता है। उस ज़माने में बाजार नहीं था, अपने मर्जी से कपड़े खरीदना, बूट खरीदना नहीं था। तो उस ज़माने में लोग अपने खेती बाड़ी से गुजारा करते थे। भेड़ बकरियां पालते थे, बकरी के बाल से ये कारपेट्स और भेड़ों के ऊन से अपने लिए लिबास बनाते थे। सामने जो लिबास है देसी ऊन का लिबास है, ये वुलन शर्ट है। ट्राउजर जो है कॉटन के हैं, जूते मारखोर के खाल से बनाते, पहाड़ी बकरा, लेदर शूज। उस ज़माने में पैसे नहीं थे, लेकिन ख़वातीन फिर भी पर्स रखती थी, सुई धागा अपने साथ रखने के लिए। साथ में छोटा पाउच है, 10 फॉर लोकल कॉस्मेटिक्स, दे हैड ब्लैक स्टोन फॉर आइज, लाइक सुरमा काजल। अभी भी बच्चों में यूज़ करते हैं ताकि बच्चे को किसी की नज़र न लग जाए। परफ्यूम नहीं था, लौंग रखते थे खुशबू के लिए। ये 150 साल पुरानी लिबास। यहाँ पे बिठाया, He's gonna tell us in a minute. यहाँ पे आपको बिठा के मैं हिस्ट्री यहाँ पे बताऊँ तो 3 दिन लगेगा। लेकिन टूर में फिर 3 मिनट में बताओ। ये सारा क्रेडिट करने के साथ हो जाता है। मैं 22 साल से यहाँ पे टूर गाइड काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे पकड़ के लाया है। क्योंकि यहाँ पे हर ग्रुप में हर किसी गाइड को हम भेजते हैं, हमारे पास और भी है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना इन्फॉर्मेशन है पहले मैंने बताया ताकि वो मिस ना हो, सारा डिटेल बताऊँगा। ये कमरा बादशाह का विंटर बेडरूम और ट्रेडिशनल हुंजा हाउस। दरमियान में यहाँ पे ओपन फायर प्लेस होता है कुकिंग और हीटिंग के लिए। हर कमरे के दरमियान में ऊपर ओपनिंग रखते हैं धुआं निकालने के लिए, ऊपर से नेचुरल लाइट आती है। अभी इसको कवर किया हुआ है,
So cooking in the middle, sitting and dining portion around, or sleeping portion ये side में, और is enough for 10 to 15 people. आप ये सोचें कि आपने हुंजा के सारे घर देख लिए. हुंजा में जितने भी घर बनाते हैं इसी पैटर्न पे. आपकी तरह जो मेहमान आते हैं हम बेडरूम, गेस्ट रूम, अराउंड द हाउस बनाते हैं, लेकिन सेंट्रल पोर्शन यही होगा. किसी अमवात के दिन, शादी ब्याह के टाइम सारा फैमिली रिश्तेदार एक साथ बैठे थे. जैसे शहरों में टीवी लॉन्च होता है, हुंजा में ट्रेडिशनल घर होता है. कमरों में बाथरूम होती थी. बादशाह के महल के अंदर वॉशरूम होते थे, लेकिन इसके बैक साइड पे उत्तर ग्लेशियर था. ग्लेशियर साइड पे बाहर की तरफ छोटा वो ओपन छोटा सा कमरा रखते थे, उसके नीचे सुराख रख के कद्दू के बर्तन में पानी रख के ग्लेशियर की तरफ पीछे वॉश करते थे. आम जमींदार जो है घर के अंदर वॉशरूम है तो ओपन एयर वॉशरूम बाहर खेतों में बनाते थे. अभी हाँ सर्दियों में भी गर्मियों में बाहर जाना. तो अभी ये Ibrahim's actually getting bored. उसके बाद नीचे खड़ा होते वो वॉशरूम का बाद Poor thing. अभी यहाँ पे पूरे केरलावार में सैनिटेशन सिस्टम है. ये जापान गवर्नमेंट की तरफ से बंद किया हुआ है, तो अभी पूरे केरलावार में ये सैनिटेशन सिस्टम है. वो नीचे दरिया के किनारे पे वो वॉश करते हैं. अच्छा, इस कमरे की खुसूसियत यह है कि सर्दियों में जितनी ज़्यादा सर्दी हो सारे दरवाजे बंद करके दरमियान में लकड़ी का आग जलाओ. ये मट्टी गर्म होगी, कमरा रात भर गर्म रहेगा. गर्मियों में जितनी ज़्यादा गर्मी हो सारे दरवाजे खुला रखो, क्रॉस वेंटिलेशन से अंदर हवा चलेगी तो नेचुरल एयर कंडीशन इज कूल इनसाइड. ये इस मट्टी की खुसूसियत है. और ये पूरा किला एक लकड़ी के ढांचे पे खड़ा है. आजकल जो लोहे के पिलर्स खड़े करते हैं आरसीसी मकान बनाने के लिए, उस दौर में लोहा नहीं था, पूरे किले को लकड़ी के फ्रेम पे बनाया. उस फ्रेम के अंदर पत्थर है और बाहर से मड प्लास्टर. ये स्ट्रक्चर जिल्जिला प्रूफ है. बुजुर्गों का कहना यह है कि 800 सालों में कई बार जिल्जिला है, लेकिन ये किला कभी गिरा नहीं है. इसकी वजह जब जिल्जिला आता तो किला ज़रूर हिलता है, नेक्स्ट जगह में अपनी जगह पे चल लकड़ी में लचकी. और इसके अंदर सनूबर की दरख्त, जूनिपर खुशबूदार दरख्त, और उसके बाद फिर एप्रिकॉट, वॉलनट और पॉपुलर वुड मिक्स है. सर्दियों में बादशाह यहाँ पे खुफिया मीटिंग्स करने के लिए ये कारपेट उस दरबार के टाइम बिछाने के लिए 150 साल पुराना है. ये सेंट्रल एशिया से बादशाह को गिफ्ट में मिला हुआ. हकीकत तो नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर बाहर से कोई दुश्मन का खतरा हो, सामने खिड़की से गार्ड बादशाह को इन्फॉर्म करने के लिए. और ये जगह रखी है स्केप रूट, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता इस किले के बैक साइड पे निकलता है. ये कभी ऐसा हुआ नहीं, एहतियात पे बना हुआ था. और 15वीं सदी से पहले लोग मुसलमान आए थे. देवर शमनिज्म, परियों की पूजा करते थे, मार्फोर को स्पिरिचुअल पावर समझते थे. तो उस ज़माने में एक ट्रेडिशन था, बादशाह के लिए ग्रेप्स वाइन बनती थी, उनके स्टेट गेस्ट आते थे, मेहमानों के लिए भी, और खुद भी पीते थे. तो दिस इज़ द वाइन सेलर टू कीप वाइन इनसाइड. ये रेड कलर वाला नीचे अंगूर का रस बना के नीचे रख देते. और ये चबूतरा बना हुआ है. अपना बिस्तरा वगैरह बेड वगैरह नीचे नहीं होता था, फर्श पे सोते थे, और बिस्तरा वगैरह लपेट के रखने के ऊपर ये जगह बनती. तो नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं. दरवाजे में अपना सर काटते हैं. Yine argo paso yaran. Watch your head. Every single He looked like a street fight. It looks nice. Excuse me. Yeah, I've been in here before. खाना बॉडी गार्ड सर्वेंट कोई 30-40 लोग रहते थे. सबके लिए मेन लंगर खाना ये था. पहले स्टोन एज था, उसमें हंडी पकाते थे. मेटल के जो बर्तन हैं ये जब यहाँ के लोग ट्रेवल कर गए कश्मीर चाइना की तरफ तो वहाँ से मिले हैं ये मेटल के बर्तन. वो 3 ग्राइंडर्स है गंदम मसाले कूटने के लिए, जब चक्की सिस्टम नहीं था. उसके साथ वाला तवा है चपाती पकाने के लिए. अभी लोहे का गया, पहले पत्थर का था, लेकिन एक चपाती नहीं बना के बड़ा 2-3 चपाती एक साथ बनाने पकाने के लिए. वो गोल गोल जो मटके नजर है, पीठा कद्दू जो पंजाब में हलवा बनाते हैं उसका स्किन है, पंपकिन इज फॉर स्टोरिंग वाटर.
और साथ में लकड़ी का लंबा बर्तन है वो मदानी, जिसमें लस्सी बनती है। हर तो पिलर के पीछे सफ़ेद जो लटका है वो दैट्स द स्किन ब्लोअर, आग तेज करने के लिए फूंकनी बकरी के खाल का बना हुआ है, उसमें हवा भर के आगे हवा देने के लिए तेज करनी। हर बंदे का अलग अलग प्लेट नहीं था, 8-10 बंदे एक साथ खाना खाते थे इस तरह वुडन बोल। ये लकड़ी के कराकरी हैं और ये लकड़ी के चम्मच है सूप जूस वगैरह पीने के लिए। ये छोटे और बड़े 2 साइज के चम्मच हैं, क्योंकि घर में फैमिली में अगर सारे बंदे एक साथ खाना खाते हैं तो घर में जो तगड़े बंदा है वो सारा खाएगा, जो जो है वो रह जाएगा। तो इसको कंट्रोल किस करें, जो ज़्यादा खाने वाले उसको छोटा चम्मच और जो कम खाता है उसके लिए बड़ा चम्मच, ताकि बराबर में खा सके। तो सबको पता चल जाए कौन कम खाता है कौन ज़्यादा खाता है, चमचा देख के। और ऊपर ये ओपनिंग रखते थे धुआं निकालने के लिए, ऊपर से नेचुरल लाइट आती है। उस ज़माने में टेंट गिलास वगैरह नहीं था, हल्की बारिश हो तो मिट्टी में जज़ब होती है, अगर हेवी रेन हो तो बड़े बड़े बर्तन रख के पानी को लेकर के वॉशरूम में यूज़ करते हैं। उस ज़माने में लाइट नहीं थी, लेकिन फ्रिज और ओवन का कंसेप्ट था नेचुरली। यहाँ पे फायर प्लेस है, लकड़ी का आग जलाओ, ये मिट्टी गर्म होगी तो कमरा रात भर गर्म रहेगा। इसके बैक साइड पे उत्तर ग्लेशियर था, छोटे छोटे विंडोज रखे थे, ग्लेशियर से ठंडक आती थी, पानी दूध वगैरह ठंडा रखते थे, इसका नेचुरल रेफ्रिजरेटर। लेकिन ग्लेशियर अभी पिघलता ख़त्म हो गया, 2 घंटे का पैदल रास्ता है। फिर सर्दियों में बेड बकरियाँ ज़बह करके गोश्त साफ करके उधर लटका के रखते थे तो वो ड्राई हो जाता था, तो ड्राई गोश्त 2-3 महीने तक यूज़ करते थे। साल भर लकड़ी जलाया करते थे, उस लकड़ी की धुआं की वजह से ये छत जाली है। इसमें 99% लकड़ी ओरिजिनल हालत में है और ये जुनिपर सनोबर की तरह है। ये देख के साथ लकड़ी का छोटा चीज़ बना हुआ है, नज़र आ रहा है? ये क्या हो सकता है? लकड़ी का होगा, आग जलाने वाला का होगा, आग जलाने वाला आग जलाने की वो नहीं, वो जो माचिस होती नहीं थी। कोयला नहीं है। This is mouse trap, चूहा पकड़ना। वाह, नहीं बड़ी बड़ी किचन में इमेजिन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किचन में ही ज़रूरत होती है। इसके सामने स्ट्रिंग है, यहाँ पे प्याज कोई खाने की चीज़ अंदर से रखो, जाके खाएगा Mouse तो trap. पकड़ा जाएगा। Wow. माउस है, लेकिन यहाँ पे रेट नहीं होता, बड़े बड़े चूहे नहीं होते हैं, यहाँ पे माउस होता है छोटे छोटे। Not in Islam, तो but they do it. वो इसका बहुत बड़ा नहीं होता है। Exactly. बिल्लियाँ करती हैं। मॉनिस्टर लेवल के नहीं होते हैं, ये बहुत से बड़े होते हैं, छोटे छोटे। वाले ऊपर छत पे चलते हैं। So if you still haven't subscribed to our channel, so don't forget to subscribe. Marvels of Pakistan. We will show you simply the best. आधा कमरा हम दिखाते थे, ये नीचे वाले नहीं दिखाते थे, वो रेस्टोर हो रहे थे। ऊपर से ऊपर का मंजिल पीछे से दिखा के 4-5 कमरे दिखा के निकालते थे, क्योंकि टूरिस्ट शौक करता था कि हमें पहले देख के बगैर हम वापस नहीं जाते हैं, तो उनका शौक भी ख़राब ना हो और का रेस्टोरेशन भी चले। ये 2015 में आया था, 2015 में। 15 में तो उसके बाद earthquake. फिर अर्थक्वेक की वजह से इसको दोबारा रेस्टोर किया। उसके बाद फिर वैसे 15 मार्च से पहला बंद था, अभी 10 दिन पहले हमने खोला दोबारा। उसमें अभी सारे कमरे इसमें यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन राधा पोशी, उसके बाद ये स्मायर पीक ईरान की, ये ब्लैक पहाड़ के पीछे Rakaposhi, Smile Peak, Uttar 1 and Uttar 2. लेडी फिंगर बिल्ली की शेप की तरह नजर आती है, दैट्स व्हाई इसका लेडी फिंगर। उसका ओरिजिनल नाम मुकामी ज़बान में है बुगुली मोटी। Bugule Moti. बुगुली इज अ क्री नेम, टी जो है इज अ पॉइंट। तो उसके पीछे एक लंबा Ladyfinger Mountain right in front of me. वो नीचे वाले कमरे में बैठ के सुनेंगे। हाँ, बच्चे वाले कमरे में बैठक। इसको नागोपोशी को वो सामने ये जापानीज क्लाइम किया था और जर्मन ने भी क्लाइम किया था। अच्छा, अभी जो यहाँ के रॉयल फैमिली रहते हैं, सामने रेड एंड वाइट मोबाइल टावर नज़र आ रहा है। यस। ये वाला इधर से गिनती करो तो 5 टावर, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ तो 5 टावर के पीछे छत नज़र आ रही है, दरख्तों के पीछे वो रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है, और नीचे जो ग्राउंड में उनका होटल है, दरबार होटल। दरबार का मतलब यहाँ पे दरबार लगता था, वही समझ में होगा। इसके बाद
सब पहाड़ों पे सनराइज और सनसेट देखने के लिए आजकल टूरिस्ट یہ وہی دربار ہوٹل ہے جہاں پہ ہم رکے ہیں رات کو. بیسکلی اس پہاڑ کے پیچھے مطلب اس طرح کا چونچ بنا ہوا ہے نیچے یہ سامنے جو مٹی کی جو راکھ پڑی ہے اسی طرح کا ایک چونچ ہے. ابھی یہاں پہ 5 منٹ فری ٹائم یہاں پہ پکچرز بنا لیں. At the moment we're at the top of the Baltit Fort. ہم بلتت فورٹ کے بالکل اوپر ہیں اور یہاں پہ ہمیں 5 منٹس ملے ہیں تصویریں بنانے کے لیے. ہمارے گائیڈ نے ہمیں ٹائم دیے اور یہ دیکھیں خوبصورت ویلی ہنزا ویلی. A beautiful sunny day here in Hunza. اور یہ کمرہ گیسٹ روم مہمان خانہ. ابھی یہاں پہ پکچر گیلری ہے. یہاں پہ جو پکچر لگے ہیں اس طرف آغا خان فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ لکھا ہوا ہے. اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا ہے. ان کا تعلق اہل بیت سے ہے. حضرت علی علیہ السلام کے نسل سے یہ 46واں امام شاہ حسن علی شاہ اس زمانے میں ایران میں تھے اور ایران کے بادشاہ نے ان کو آغا خان کا ٹائٹل دیا تھا. یہ لفظ فارسی کا ہے آقا خان بزرگی کا خطاب ہے اور یہی ٹائٹل ان کے بیٹوں میں کنٹینیو ہے. ان کا بیٹا سیکنڈ ان کا بیٹا آغا خان تھرڈ جن کا پاکستان موومنٹس میں ہاتھ تھے اور پاکستان مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ یہ تھے. اور ان کا پوتا جو ابھی کرنٹ آغا خان فورتھ ان کا نیشنلٹی فرانس میں ہوتا ہے لیکن ان کے دادے پردادے ان کا تعلق ایران سے ہے. باقی اس قلعے کے ریسٹوریشن پہ زیادہ تر کنٹریبیوشن کرنٹ آغا خان کا ہے. ہنزا چھوٹی سی ایک ریاست تھی. یہاں پہ بادشاہت کا نظام تھا. ان کے پکچرز یہاں پہ لگے ہیں. میر غزن خان میر مینز اے کنگ 1863 سے 86 تک. ان سے پہلے پورٹریٹ فوٹوگرافس نہیں تھے. ان کے بعد ان کا بیٹا میر صفدر خان 1891 میں جب برٹش لوگ آئے تو ہی اسکیپ ٹو چائنا. It looks like Mongolian. یہ ڈرا کیا ہوا ہے ہاتھ ڈرا. بس وہ بنانے والے کی غلطی ہے. اچھا ان کے بعد ان کا چھوٹا بھائی نظیم خان اور انگریزوں نے ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا KCIE نائٹ کمانڈر آف انڈین امپائر. پھر ان کے بعد ان کا بیٹا میر غزن خان. پھر ان کا بیٹا آنریری میجر جنرل میر جمال خان 74 میں ان کی حکومت کو بھٹو نے ختم کیا اور 76 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہاں سے بادشاہت کا نظام ختم ہو گیا. ان کا بڑا بیٹا ابھی کرنٹ میر آف ہنزا. میر جو ہے ان کے پاس ٹائٹل رہ گیا. پاورز ختم ہو گئے. جب پاور ختم ہو گئے تو پھر یہ پولیٹکس میں آ گئے. یہ 25 سال ریگولر ہنزا کے MNA رہ چکے ہیں. 5 سال چیف ایگزیکٹو ناردرن ایریاز اور پچھلے یہ 5 سالوں میں گورنر گلگت بلتستان رہے. ناؤ ہی از ریٹائر فرام پولیٹکس. ان کی وائف ہے رانی عتیقہ اور ان کا بڑا بیٹا ہے پرنس سلیم خان. یہ لاسٹ کنگ حسان اور ان کا پرنس یہی لباس پہنے ہوئے ہیں. یہ بادشاہ کے سرمونیل ڈریس ہیں. اس کے ساتھ والا لباس رانی آف ہنزا کا لباس ہے. اور یہ ہنزا اسٹیٹ فلیگ تیر کمان جب لوگ مسلمان ہوئے پھر چاند تارا. ابھی جو باہر پہاڑوں کے نام بتایا 4-5 ہزار میٹر بلندی پہ آئیبیکس مارخور بلو شیپ مارکو پولو شیپ اور سنو لیپرڈ رہتے ہیں. باہر جو سینگ لگے ہوئے تھے وہ بلو شیپ اور آئیبیکس مارخور کے. یہ جو سینگ لگے ہوئے ہیں یہ مارکو پولو شیپ کہلاتا ہے. مقامی زبان میں ہم لوگ اس کو روش کہتے ہیں. تو مارکو پولو اٹالین ایکسپلورر نے اپنا نام اس کو دیا ہے اس لیے اس کو مارکو پولو شیپ کہتے ہیں. لیکن یہ میڈیم سائز ہے. اس کے بڑے سینگ 3 ٹرن تک نکلتے باہر ہیں. اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ فوکس کین بی سٹ انسائڈ دیٹ بگ. لومڑی اندر بیٹھ سکتے ہیں اتنے موٹے سینگ. اور کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے سینگ کی وزن کی وجہ سے گردن ٹوٹ جاتی ہے جب یہ کمزور ہوتا ہے. اس کا شکار لیگل ہے. سال میں 1 ڈاکٹر ہنٹنگ ہوتی ہے لیکن فی الحال پابندی ہے. تو ریچ یورپینس جب تک وہ الاؤ تھا تو $80,000 پے کرتے تھے. $80,000 for one shot. یہ سمر بیڈ روم. اس زمانے میں بیڈ وغیرہ نہیں ہوتا تھا. نیچے فرش پہ سوتے تھے. سامنے یہ کارپیٹ مسند کہلاتا ہے. باہر شاہی تخت پہ بچھانے کے لیے ہے. اوریجنل گولڈ کا ہوتا ہے. اور اس کی چھت یہ کشمیری طرز تعمیر ہے. باقی یہ جو لکھا ہے یہ ہنزا اور چائنا کے ٹریڈ ایگریمنٹس کے چائنیز اور فارسی میں کیونکہ ہنزا کے آفیشیل لینگویج جو فارسی تھی. First picture Chinese Prime Minister Chewing Live last king of the 1960s in Karachi. یہ قراقرم ہائی وے بن رہی تھی اسی کی مصافحہ کر رہے ہیں. باقی ان کے کزنس کے پکچرز ہیں.
सामने वो पिक्चर रानी अफूजा लास्ट किंग की वाइफ, ये 15 साल पहले वो हुंजा में पहला टेलीफोन, ये अंग्रेजों के दौर का, साथ में वो डायलर है रानी ऑफ हुंजा। वाला और सामने सुनने के लिए फोन। मार खोर इज अ स्नेक ईटर। मार का मतलब सांप, खोर का मतलब खाना। सांप खाता है लेकिन उसका जहर नहीं खाता, वो जबड़े में रखता है और गोश्त खाने के बाद वो उसको नीचे फेंक देता है। और कहते हैं जब एक दफ़ा इसको सांप मिल जाए तो वो कई दिनों तक घास वास खुराक नहीं खाता है, उसका पेट भर जाता है बस किसी की गोश्त से। इस दरवाजे में सरकार खड़ा के आगे करने की कोशिश करते हैं, बात से बाहर जो बैठे हैं उनको देख नहीं पाता हूँ। अरे वो सब पीछे वाला बाहर छत पे मौसम की खराबी में या ज़्यादा धूप तेज की सूरत में यहाँ पे अंदरून दरबार लगता था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शादी ब्याह पोलो में चीज़ में आजकल भी बजाते हैं, ढोल, शहनाई और तबले। उसके साथ चाइना पहला कंट्री है जिन्होंने कागज़ के पैसे इंट्रोड्यूस करवाए, तो फर्स्ट चाइनीज पेपर मनी डिस्प्ले पे हैं। और इस तरफ ये तोड़ेदार बंदूक जिसमें सामने से बारूद करते हैं, मैच लॉक रैफल्स, ये रशियन गन्स हैं लेकिन आए चाइना से। अच्छा, इस कमरे की छत नहीं होती, इस पर बारिश का पानी भी अंदर आता, बर्फबारी भी होती है, लेकिन फर्श को थोड़ा स्लोप रखे, ड्रेनेज सिस्टम रखते थे पानी निकासी के लिए। ये हुंजा के ट्रेडिशनल कारपेट बकरी और याक के बाल से बनाते हैं, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। अभी यहाँ पे रास्ते में आपने कोई डिसेबल तो नज़र आएंगे लेकिन बेकारी नज़र नहीं आएगा। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जितने भी डिसेबल्स हैं उनको बकरी के बाल साफ़ करना, उससे धागा बनाना और कारपेट बनाना सिखाते हैं और उसके बाद उसको वजीफ़ा मिलता है। तो ख़वातीन डिसेबल जो है वो इस तरह के कारपेट्स बनाती हैं हाथ से, लेकिन सामने वाला कारपेट जो है ये चाइनीज़ कारपेट है, तकरीबन 250 साल पुराना। ये अब जी, खुतान इज़ फेमस सिटी फॉर मेकिंग कारपेट्स इन चाइना। तो ये चाइना खुतान से बादशाह को गिफ्ट मिला हुआ कारपेट, और ये ऊँट के ऊन से बने, कैमल ऊन। आप लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है या अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज लेकिन बोलने में विशेष रशियन फॉर्म में नहीं था। नहीं, हुंजा में 3 ज़बानें बोली जाती, 4। लोअर हुंजा में शना ज़बान बोली जाती है जो गिलगित के आसपास में बोली जाती है, सेंट्रल हुंजा में बुरिशियसली, अपर हुंजा में वाक़ई ज़बान के ताजिक, और यहाँ पे एक स्पेशल ट्राइब है म्यूजिशियन बेकाल बेरीचो, दे स्पीक बेरिक्स डोमाकी। लेकिन ऑफिशियल जो पर्शियन रही है, रिटन पूरे सब कॉन्टिनेंट में पर्शियन लैंग्वेज आप लोग पर्शियन। अच्छा, इसका छत ये ऐसी था या सर इसकी छत नहीं होती है, समर के वाला कमरा ऊपर होता है, सर्दियों के लिए इसको थोड़ा तंग करके छोटा रोशन ना। इसकी वजह ये है कि एक तो ज़्यादा रोशनी में हवा आ जाए, और नीचे जो दरमियान में कमरा रखते हैं उसके लिए भी रोशनी ज़्यादा। तंग करने का मतलब बेटा इधर से लकड़ी लगाते हैं, फिर इधर लगाते हैं, फिर उसको ऊपर इस तरह लकड़ी लगा के इसको छोटा बनाते हैं। फातिमा, आपने नोटिस किया यहाँ पे बेगर्स नहीं है, है ना? Why not? उन्होंने बताया था ना पूरी इसकी हिस्ट्री। यहाँ पे चोरी नहीं है, यहाँ पे क्राइम नहीं है, 0 है। No bad people, only good people. अगर आप और यहीं पे हमारा टूर ख़त्म होता है किले का, बलतत फोर्ट का। एंड नाउ वी विल exit the building from here. अब्दुल्ला भाई
This is the way out. A very enriching experience in the Baltid Fort. Learned a lot, and I'm trying to retain the information. It's going to be a lot to remember. A beautiful, lovely, sunny day here in Hunza. And Baltid Fort will be our next destination for now. Just can't get enough of this beautiful place. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad! Hello everybody! Right now I'm at the top of the Baltid Fort. Keep watching Mamas of Pakistan! ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.